ਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਵ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਰਵ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਫਰਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 2-3 ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ठीक है, टेंजेंशियल और नॉर्मल दे विच की होएगा कि मान लो v इनीशियल विलोसिटी है दैन कॉरसपोंडिंग नॉर्मल विलोसिटी चेंज होके की बन जाती है v प्लस डेल्टा v। ठीक है, इनदे मैं डायरैक्ट तुहानूं करवा रही हाँ AT फिलहाल समझने लिए, बाद विच आपां दोबारा इहदे ते आवांगे। let AT denote the tangential component, then what will be the tangential component? It will be equals to dv upon dt, where v is the velocity of the particle and an is the normal component of velocity, and an will be equals to v square upon rho, where rho is the radius of the curvature of the curve at p. And if we are to get the resultant acceleration, then a is equal to dv by dt square plus v square upon rho whole square. If the particle moves along a circle of radius r, then an is equal to v square, r is the radius of curvature of the circle and it is equal to the radius of the circle। ठीक है, इनदा हुण इहदे नाल दा एक साम असीं लास्ट एग्जाम्पल करन लगे हां, विचों 2-3 एग्जाम्पल्स फिलहाल मैं स्किप करवाइयां। अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ प्लेन कर्व सच दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल components are equal. So now we are given tangential and normal component are equal. Tangential acceleration की है v इंटू डी वी बाई डी एस, नॉर्मल एक्सलरेशन की है v स्केयर अपॉन रो, एंड बोथ आर गिवन इक्वल टू अस। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट दिस formula. So this is the equation 1, this is the required equation of the path of the particle. Now we are to find out the projectile. Most important topic of 6th chapter is projectile. A particle which is projected in a direction oblique टेढ़ा जावे to the direction of gravity and which moves in a vertical plane under its own weight is called a projectile. और projectile ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ एग्जाम्पल की है, जिवें तुसी सब मोस्टली कईयां नूं बहुत ज़्यादा क्रिकेट पसंद हुंदा है, तां जिहड़े बॉलिंग करदे आ उन्हां दी बॉलिंग दी अगर असीं डायरैक्शन देखिए तो बॉलिंग दी डायरैक्शन की है प्रोजैक्टाइल है। ठीक है, सो द velocity with which a body is projected is called velocity of projection. The angle with which the velocity of projection make with the horizontal is called angle of projection. और अगर मैं projectile ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल देनी होवे ਤਾਂ projectile देखो ਇੱਥੇ कोई person खड़ा बॉलिंग कर रहा, ਉਹਦੀ बॉल किस तरह जाएगी, इस तरह ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ जाएगी। This is the path of projectile. ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ पॉइंट ਤੇ अगर उनकी पोजीशन चैक करनी है तो वो की है हॉरिजोंटल ते वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। वर्टिकल दे विच उनका जिहड़ा वेट फोर्स जिहड़ी वेट वाली है वो इत्थे अपलाई होएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द पाथ ऑफ प्रोजैक्टाइल। सब तो बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिकेट दे विच बॉलिंग दी। सो नाउ देखो the path of and the time taken by projectile to complete its journey is called time of flight. मतलब इत्थों शुरू होके वापिस इत्थे आना, this is time taken by this is called time of flight. The path traced by the projectile is all called trajectory. हमेशा देखियो बॉल इस पोजीशन च हुंदी है, पहला नीचों तो ऊपर एक सर्टन पोजीशन ते जान तो बाद वापिस ए ते इस सर्कल दे या कह लो पैराबोला या फिर गुलाई दे थ्रू हुंदी होई जांदी है। नैक्सट असीं इहदे कुछ फॉर्मूला कर रहे हैं। देखो द पाथ ऑफ अ प्रोजैक्टाइल प्रोजैक्टेड फ्रॉम अ फिक्सड पॉइंट इनटू एयर विद इनिशियल वेलोसिटी u in a direction making an angle alpha. Alpha is not pi by 2 with the horizontal is a parabola and the air resistance being neglected. हुण असीं ये प्रूव करना है कि जो पाथ फॉर्म हुंदा वा प्रोजैक्टाइल दे नाल द पाथ ऑफ प्रोजैक्टाइल जो है वो एक पैराबोला फॉर्म करदा, और इत्थे जिहड़ा एंगल है पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पाई बाय 2 होएगा फिर तो वाई दे उपर आ गया, फिर वो जिहड़ा वा प्रोजैक्टाइल या प्रोजैक्शन वाला मैथड नहीं है। उनके लिए देखो लेट अ प्रोजैक्टाइल बी प्रोजैक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द ओ
the axis of x and y, pxy be the position of the particle at time t, the only force acting on the body is the weight mg acting vertically downward, the equation of the motion, देखो x वाल कोई motion नहीं है, so mf is equal to 0 from x side, y वाली साइड केड़ी फोर्स लगती पई है, डाउनवर्ड फोर्स है, देयरफॉर माइनस mg आएगा। ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ m ਇੰਟੂ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਡੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਫ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਔਰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਰਟੀਕਲ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਡੀ ਐਕਸ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू विल टेक u cos अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u sin अल्फा माइनस gt। ठीक है, उस तो बाद x की वैल्यू आ जाती है u cos अल्फा t, मतलब हॉरिजॉन्टली कितना उन्हें पाथ कवर किया, वर्टिकली उन्हें कितना पाथ कवर किया। ठीक है, ये सारिया चीज़ां आ जांदियां नाल दी नाल। उस तो बाद इहदे च आ जांदा वै वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, इनू बोलिया जाता वै पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोजैक्टाइल इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एज दिस, कि जो पाथ ऑफ प्रोजैक्टाइल है वो एक डाउनवर्ड पैराबोला बनता है जिंदा वर्टेक्स की है दीज टू टर्म्स। एंड देन लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजैक्शन। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तुहानू सब नू पता ही है की हुंदी है। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की आ गया 2u² g cos square alpha upon g। also we get हाइट ऑफ डायरैक्टरीज u² बाय 2g आ हाइट ऑफ डायरैक्टरीज होंगी है। इनके लिए अगर तुम फस्ट ईयर पैराबोला बहुत अच्छी तरह किया तुहानू इत्थों क्लीयर हो जाएगा। ठीक है, अज फिलहाल सिर्फ असी फॉर्मूलाज ही करने हैं। सो इक्वेशन ऑफ डायरैक्टरीज इज y इज इक्वल टू u² अपॉन 2g। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ ट्रोजैक्टरी, फोकस भी तुहानू पता की हुंदा वे। ठीक है, आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ फ्लाइट इट विल बी इक्वल टू 2u sin अल्फा बाय g, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट u sin अल्फा बाय g, हॉरिजॉन्टल रेंज की होएगी u² sin 2 अल्फा बाय g, ग्रेटेस्ट हाइट की होएगी u² sin स्क्वेयर अल्फा बाय 2g। ये सारा तुसी रीड आउट करना है। कल मैं जिहड़ी तुहाडी जूम ते क्लास लगानी है और ऑरली तुहाडे तो सुनना है कि किंदे लई किहड़ा फार्मूला यूज़ करना है। सो फर्स्ट वी आर डूइंग फर्स्ट एग्जाम्पल। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो अल्फा इज गिवन 45 टू अस, velocity is 49 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल है ना, सो u गिवन है आपां नूं, अल्फा गिवन है। सो वी विल काउंट टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ग्रेटेस्ट हाइट, ये सारा कुछ जिथे मैक्सिमम हाइट लिखा होएगा, रेंज लिखा होएगा। फिलहाल तुसी सिर्फ आ फार्मूलाज ही लर्न करने हैं और याद रखनी है चीज़। जो अगेन एंड अगेन यूज़ करांगे फिर तुहानूं ये याद होने भी शुरू हो जूगे सम्स दे विच, जो इन्हां नूं शुरू करांगे डालना।